ओके सुप्रिया, अगेन हम जो है ना आज फिर ब्लैचिस्टर सेंटर के सामने बैठे हुए हैं और एक और मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट करना है ना? Yes. ठीक है। और नेविगेशन के ऊपर करेंगे और अगेन ये विलेज की ड्राइविंग है। आई डोंट थिंक कि आपने विलेज की ड्राइविंग दैट मच की है। Okay. कोई थोड़ी बहुत की है आपने, लेकिन ज़्यादा नहीं की। तो देखते हैं, अगर आप अच्छा करके तो वेल एंड गुड, ना करके जहाँ पर आपको कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि मोस्टली आपने भरोसे पे करें, क्योंकि अब आपकी ड्राइविंग काफ़ी बेटर हो चुकी है। यू नॉट फुली ट्रेंड। अगर छोटी मोटी गलती हो रही है उसको हम एंड पे डिस्कस भी करेंगे और एंड पे उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। टाइम हुआ तो फिर हम प्रैक्टिकली ड्राइव करके भी इसको ठीक करेंगे। क्या आप उसके लिए रेडी हो? Yes. ठीक है। प्रिया, ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी प्लीज। At the end of the road, turn right, please. After 70 yards, turn right, Church Green Road, then go left on the roundabout and take the first exit. After 100 yards, go left on the roundabout and take the first exit, Church Green Road. Go left on the roundabout and take the first exit. Priya, can you pull up on the left when it is safe to do? Okay. You done? Yeah. Okay, drive on when you're ready, please. At the end of the road, turn left, Shenley Road, then go left on the roundabout and take the first exit, B4034, Pull up on the left Buckingham again Road. when it is safe to do, please. Okay.
Okay. You done? You done, Bhaiya? Yes. Okay. Drive on. When you're ready, please. कुछ फील हुआ आपको? कार इसमें थी. नहीं, अब कार At को the हिट end किया of the आपने. road, turn left, जी. Shenley Road, then go left on the roundabout and take the first exit, B4034, Buckingham Road. क्या बोला उसने? Please go left on the roundabout. After 100 yards, go left on the roundabout and take the first exit, B4034, Buckingham Road, then take the second right. तो ये आपकी सीट की पोजीशन ठीक है? ठीक है. Are you able to see in front of you? थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, मतलब हाँ ठीक है. चलो सही है. Notice. After 200 yards, turn right, Milton Grove. Turn right. Okay, pull up on the left again. Somewhere near to that lamp post, please. Don't worry about the junction here. After 100 yards, turn right, Shelley Drive. Thank you. All right. Drive on when you're ready, please. Turn right, Shelley Drive. क्या कर रही हो? Keep going, Priya अभी. चलते रहो, please. At the end of the road, turn left, Shelley Drive. Turn left. At the end of the road, turn left, Newton Road. Turn left.
100 yards, turn left, Stoke Road. Turn left. At the end of the road, turn right, Drayton Road, then turn left. Turn right, then turn left. Turn left, Newton Road.
At the end of the road, turn left, then road. Turn left. Priya, can you pull up on the left when it is safe to do, please? Okay, so drive on when you're ready, please. After 500 yards, go left on the roundabout and take the first exit, A4146. Go left on the roundabout and take the first exit. After 800 yards, go right on the roundabout and take the third exit, Drayton Road. Go right on the roundabout and take the third exit. Take the exit, Drayton Road, then turn right. After 200 yards, turn right, then take the second right.
turn right, then take the second right. After 100 yards, turn right, Lomond Drive. Turn right. After 300 yards, go left on the roundabout and take the first exit, Stoke Road. Go left on the roundabout and take the first exit. After 200 yards, cross the roundabout and take the second exit, Stoke Road. Cross the roundabout and take the second exit.
After 300 yards, cross the roundabout and take the second exit, Manor Road. Cross the roundabout and take the second exit. Go left on the roundabout and take the first exit, Water Eaton Road. After 200 yards, cross the roundabout and take the first exit, Water Eaton Road. Cross the roundabout and take the first exit. After 200 yards, go left on the roundabout and take the first exit, B4034, Buckingham Road, then turn right. Go left on the roundabout and take the first exit, then turn right. Take the next right, please. After 100 yards, turn right, Church Green Road, then take the second right. Turn right, then take the second right.
After 100 yards, turn right, Wilton Avenue. Then you have reached your destination on your right. Turn right, then you have reached your destination on your right. You have reached your destination, Wilton Avenue. Pull up on the It left is side, on your yeah. right. तो प्रिया, ये हमारा मॉक टेस्ट हो गया आज, ओके। एंड ये रूट नंबर 16 पे हमने किया, ब्लैचरी का रूट नंबर 16। आसान नहीं था, मेरे पता विलेज की ड्राइविंग थी, और ये रूट हमने पहले शायद किया भी था, स्टॉक नहीं किया। चलो अगर नहीं किया तो अब आज कर लिया ना, ओके। तो कभी कभी थोड़े बहुत हमने रूट किए होते हैं उस साइड के, तो मिक्सिंग भी होती रहती है। तो ओवरऑल अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो तो कैसा रहा, मतलब ओवरऑल आपका जो मॉक टेस्ट है? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बट डेफिनेटली मिस्टेक्स तो हुए हैं। बिगिनिंग में 1-2 हो गए थे, ठीक है। बिगिनिंग के बाद आई थिंक उसके बाद काफी ठीक रहा। ये होता है, ये टेस्ट का जो होता है ना, मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिकल टेस्ट में ना, शुरू में कभी कभी बंदा फंसता है, ओके। और कभी कभी मिडिल का जो पार्ट होता है ना वो अच्छा होता है, या फिर एंड पे ना बिल्कुल लास्ट मिनट 2-3 जो मिनट होते हैं ना, उसमें भी कभी कभी ना गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलती बंदा कर बैठता है, सीरियस मिस्टेक्स। तो जो फोकस बंदे का लूज होना शुरू हो जाता है, तो बंदा थोड़ा थकना भी शुरू हो जाता है, थक भी जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इट्स ओके। एनीथिंग एल्स यू रिमेंबर? यस, बिगिनिंग में वो राइट टर्न लेने के लिए वो फेलियर है, बट मुझे उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन है, आप क्लैरिफाई करेंगे फिर मैं पूछूंगी। और सीरियस मिस्टेक्स तो इतना मे बी पुल अप अच्छे नहीं हुए मेरे। अरे पुल अप का बहुत मसला जा रहा है, आई डोंट नो, यू नो, लाइक काफी अच्छे पुल अप करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप लोग शुरू में ना बहुत करीब जाने की कोशिश करते हो, इतना बहुत करीब मत जाया करो। जंक्शन जो होता है ना, कर्व के थोड़ा सा रीजनेबली करीब रखें। आपको 1 फुट का गैप दिया गया होता है, तो 1 फुट का गैप रखें, आधे फुट का कर लें। बहुत करीब जाएंगे तो लगने का खतरा होता है, तो एक बार आपको लग भी गई थी। चलो इट्स ओके, एनीथिंग एल्स? नो, पुल अप और यू मेन है, बाकी स्मॉल भी रहेंगे। तो एक तो बात ये है जी कि सबसे पहले तो मैं आपको मिरर सिग्नल का बता दूं, ठीक है। मैं इसको कट कर दूंगा। मिरर सिग्नल में अभी भी आपको प्रॉब्लम चल रहा है। कभी कभी आप मिरर सिग्नल अच्छे करते हैं, कभी कभी बुरे करते हैं, और कभी कभी दोनों एक ही टाइम कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम यू आर चेकिंग मिरर एंड गिविंग सिग्नल। नो, पहले मिरर चेक करें, फिर उसके बाद सिग्नल दें। ये हो रहा है, खास करके मॉक टेस्ट में हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस रखें। क्या करें, जब भी इंस्ट्रक्शन आपको मिले, मिरर देख लें। अगर लेफ्ट का बोला उन्होंने तो सेंटर एंड लेफ्ट का मिरर देख लें। अगर राइट ने बोला तो सेंटर एंड राइट का मिरर देख लें, और फिर उसके बाद सिग्नल दें। चलो 1 सेकंड का कम से कम गैप उसमें लाजमी दें, 1 या 2 सेकंड का, लेकिन 1 सेकंड तो कम से कम लाजमी। मिरर देखा, फिर इंडिकेटर दें। आप क्या करती है, कभी कभी मिरर देख रही होती है, ऐसे उसको डाउन कर रही होती है, और कभी कभी आप इंडिकेटर पर देख के फिर मिरर देखती हैं। ये मैंने नोटिस किया है ना आपने, तो ये एक बार हुआ है, ज्यादा नहीं, पर 1-2 बार अभी भी हो रहा है बीच में बहुत अच्छे भी हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जब हम यहाँ से निकले बाहर, वहां पर हम T जंक्शन पे गए। आपको पता है कि राइट और लेफ्ट थोड़ा बिजी होता है, कभी कभी तो बिजी था, उधर से गाड़ियां आ रही थी, ओके। तो वो अगर सामने से गाड़ी निकल रही थी बाहर से, ये अक्सर ऐसा होता है, कितने बार ये लोग यहाँ पर फेल भी। ये आदमी जो सामने से निकलता है ना, ये आदमी बहुत अच्छा है। टेस्ट में अगर बैठा हुआ हो ना, आप बैठे हो ना, तो वो आपको रोक के फ्लैश कर देता है, तो फिर एग्जामिनर को पता लग जाता है कि यार इसने रास्ता दे दिया। बट मेनली उनका प्रायोरिटी है? नहीं, प्रायोरिटी उनकी नहीं है। बात ये है कि सबसे पहले तो बात ये है कि देखो, आपने उसके साथ आई कांटेक्ट करना। वो अपने ड्राइववे से निकल रहा है, ओके, और आप कहाँ से हो? आप रोड के ऊपर हो, आप जंक्शन से जा रहे हो, ओके। तो टेक्निकली उनको रुकना चाहिए। वो अपने ड्राइववे से बाहर आ रहे हैं ना, और वो रुकता भी है, वो आदमी अच्छा है, वो फ्लैश कर देता है। उसको पता, जब हम यहाँ पर हाई विज जैकेट पहन के एग्जामिनर बैठे होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोट किया है कि वो बंदा बाहर नहीं निकलता, ओके, क्योंकि बिल्कुल जंक्शन के, हमारे जंक्शन के बिल्कुल सामने है, और टेस्ट सेंटर से निकलते वक्त बंदे प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। एनीवे, अब आते हैं असल सिनेरियो की तरफ। असल सिनेरियो ये हुआ कि लेफ्ट के ऊपर से 3-4 गाड़ियां आ रही थी, ओके। राइट से भी गाड़ी थी, वो काफी थोड़ी उस टाइम दूर थी, ठीक है। तो राइट इतना बैड नहीं था, और वैसे भी हमें राइट से सामने से गुजरना ही था ना, तो हम गुजर के दूसरी तरफ चले जाते तो राइट वाला हमारे अपोजिट में जा रहा था, तो वो इतना इशू नहीं था। असल इशू था वो जो लेफ्ट से गाड़ियां तेज आ रही थी, वो आदमी भी तो उन्हीं के लिए रुका हुआ है ना। वो कहाँ जा रहा था? वो लेफ्ट जा रहा था, ठीक है। वो लेफ्ट जा रहा था ना उधर से, ठीक है। तो वो ऐसे झुक के देख रहा था उसको, ठीक है। तो वो क्यों रुका हुआ है? अगर वो इसलिए रुका हुआ, उसको पता है कि वो सामने से गाड़ियां आएंगी, वो मुझे फॉलो करेंगी, तो टाइम दे रहा था ना वो। आपको भी थोड़ा पहले उसको टाइम देना चाहिए था। किसको? लेफ्ट वाली गाड़ियों को,
ओके उसके बाद आपको उसके साथ जब आप वहां पर रुकी हुई थी तो आपने उस आदमी के साथ भी आई कांटेक्ट करना है जब तक वो आदमी, हालांकि प्रायोरिटी आपकी है टू बी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन, ठीक है, हाँ न्यू सिनेरियो था, लेकिन जब तक आपका उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं होता तब तक आप ना जाएं, क्योंकि जो ही आप मूव करेंगे वो भी मूव कर जाएगा, दोनों का कोलिजन हो जाएगा वहां पर। वो वहां से बाहर निकल रहा है जंक्शन से अपने से ड्राइववे से और आप जंक्शन के ऊपर हो, ओके तो इसलिए तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो थोड़ा आई कांटेक्ट करो, थोड़ा अपने आप को होल्ड बैक करो, आपने वहां से थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया आपने, ठीक है, जब मैंने ब्रेक मार दी थी, ओके वो 100% फेल कर देगा आपको। और अगर वो सामने वाली गाड़ी के लिए फेल ना भी करे ना, ठीक है, वो आपको लेफ्ट से आने वाली गाड़ियों के लिए फेल करेगा, क्योंकि वो गाड़ी आपको फॉलो करेंगी, हम राइट कर रहे हैं ना और वो उधर से आपको फॉलो करेंगी, और वो दूर नहीं थी इतनी, जो गाड़ी आपको फॉलो करेगी ना उसको थोड़ा गैप दिया करें, ओके एक ये हुआ। फिर आपने पैरेलल उसको पुल अप ऑन द लेफ्ट किया पहली बार, ठीक है, तो आपका जो बैग, जो ही मैंने आपको बोला कि पुल अप ऑन द लेफ्ट व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, आपने एकदम से पुल अप, मैंने कहा हो कि थोड़ा टाइम दिया करें ना, आप रादर देन यहाँ करने के बजाय उस आगे वाले में करती ना तो वो अच्छा हो गया था, अच्छा हो जाना था, क्योंकि आपका जो आगे वाला टायर है वो तो करीब हो गया था, पीछे वाला टायर पैरेलल नहीं था, आपने देखा था ना उसमें वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। फिर आपने अटेम्प्ट भी की, भी सही नहीं था, प्लेस चलो प्लेस का इतना इशू नहीं था थोड़ा, हाँ प्लेस इतनी बैड नहीं थी। फिर आपको रियलाइज भी हो रहा था और आप अपनी गाड़ी को थोड़ा थोड़ा आगे कर रही थी, लेकिन आपके आगे क्या हो रहा था, ड्राइववे था। अब तो क्या है, ड्राइववे है तो थोड़ा गाड़ी आगे करके दूसरे ड्राइववे को क्रॉस कर लेना, गाड़ी का मतलब सीधी तो करे ना, ठीक। बाकी एग्जामिनर की डिस्क्रिप्शन है, वो अगर आपको पास करता है या फेल करता है, लेकिन आप तो उससे पूरा काम तो कंप्लीट करे ना, ड्राइववे को थोड़ा सा आगे जाए और दूसरे वाले रेस करके पास गाड़ी खड़ी कर दें, क्योंकि ये तो आप हो नहीं पा रहा क्योंकि आपकी गाड़ी एंगल में है, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड टाइम जब मैंने आपको पुल अप ऑन द लेफ्ट किया तो उस वक्त प्रिया ऐसे रोड है, ये रोड है और वो जो कर्व है ना वो ऊंचा नहीं था, वो उसके लेवल में था, थोड़ा सा फर्क था उसमें। अभी भी हम जब अगर टाइम हुआ तो उस तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। प्रिया वहां पर आपका जो फ्रंट वाला टायर है उसके ऊपर चढ़ा, ठीक है, आपको फील ही नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत हाई नहीं है, और इसीलिए वो यहाँ पर करवाते हैं पुल अप, और हमने शुरू में वहां पर प्रैक्टिस भी की थी, एक दो बार मैंने आपको उस जगह पे करवाया भी था। जगह आपने अच्छी चूज की, लेकिन अगेन आप बहुत करीब चले गए थे पुल अप के लिए, ओके इसके ऊपर काम करें प्लीज। फिर उसी रोड के ऊपर आप जब आगे गए हो तो जंक्शन आया था, जंक्शन में आपको गिव वे लाइन के करीब खड़े होना चाहिए था, आपके कम से कम 1.5 मीटर का गैप था आपके और जंक्शन के बीच में। अच्छा, ये अच्छी बात है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ट्राई टू गो नियर टू द गिवन लाइन, जितना आप करीब होंगे उतना आपका जंक्शन जल्दी क्लियर हो जाएगा, जितना दूर होंगे टाइम लगेगा, गाड़ियां जल्दी पहुंचेंगी आपके पास, वो हुआ। फिर उसी से आगे जब हम गए तो राउंड अबाउट, जो डबल राउंड बोर्ड, इस बार हम डबल राउंड बोर्ड से लेफ्ट कर रहे थे, तो हमारा एक ही राउंड बोर्ड था, राइट तो हम जा रहे थे, वहां पर 2 लेने बहुत नैरो हैं, ये आप याद करना, जब आप अगर मैं रूट से जब मैं अपलोड करूंगा ना तो आप देख लेना आपकी पोजीशन कहाँ है। आप बेसिकली राइट लेन में थे उस टाइम, ठीक हो गया, तो वो पोजीशन ठीक नहीं थी। अभी हमारे पास टाइम हुआ था, हम फटाफट से कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो आपको कहाँ रखना चाहिए, आप चूंकि आप लेफ्ट कर रही है ना तो थोड़ा स्लो करने, और वो नैरो है वहां पर आपको डेफिनेटली स्लो करना पड़ेगा, तो आराम से स्लो थोड़ा लेफ्ट पे रखें, जितना हो सके उतना लेफ्ट पे रखें और आराम से गाड़ी को घुमा लें, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया, उसके बाद आप ने, हाँ उसी रोड के ऊपर जब हम बकिंगम रोड के ऊपर आप चढ़े तो आपने, उसने आपको बोला कि यदि 200 यार्ड राइट करना, 200 का उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने इंडिकेटर दे दिया, ठीक हो गया। अब वो दूर था जंक्शन थोड़ा सा, जब आप उसके करीब पहुंचे तो आपने इंडिकेटर कैंसिल कर दिया, फिर आपको रियलाइज हुआ नहीं तो मैं पहुंच आई हूँ, फिर आपने दोबारा दिया, याद है आपको, आपने ऑन एंड ऑफ अननेसेसरी किया। पहले तो प्रिया उसको सुने ने 200 यार्ड बोला उसने, 200 यार्ड का मतलब कोई दूर है तो कम से कम उस गाड़ी जितना दूर होगा, ठीक हो गया। तो आप थोड़ा आगे जाएं, जब तक आपको जंक्शन नजर नहीं आता, उस पॉइंट के बाद से आई एम वाचिंग कितने दूर है, हाँ वो उस पॉइंट में समझ आ गया था, ओके। तो वो आपने जो ना सिग्नल जो दिया ना वो ऑन एंड ऑफ का वो आपने अच्छा नहीं किया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई, बिलीव मी नो, वो जो आपने वो थोड़ा इश्यू किया ना, फिर मैं भी बड़ा लेजी हो गया था, ठीक है। आपने वहां से बड़ी खूबसूरत गाड़ी चलाई, आपने पूरा विलेज थ्रू ठीक किया, पहले 40 की स्पीड थी, फिर 30 की आ गई, फिर विलेज आप घुमाए, वहां पर आपने थोड़ी सी स्पीड, वो जो बेंडी रोड है ना, आपने अटेम्प्ट 1-2 बार किया, ठीक किया, 40-45 कर रही थी आप, नॉट बैड। कोशिश करें कि आप 50 जाए और स्ट्रेट स्ट्रेच हो जाए तो थोड़ा और बढ़ा लें, बाद में वो कर नहीं पाएंगे बाद में, चूंकि वो बेंडी रोड है। फिर आप जब स्लो हैमर की तरफ गई, वो आपने बहुत अच्छा किया, आगे वो नो एंट्री है, मतलब वो नो एक्सेस वाला साइन लगा तो आपने अपनी तरफ, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, आपने वो देख के आपने लेफ्ट कर लिया, वो भी अच्छा था। फिर आप नीचे गई, वहां पर स्टोक हेमर विलेज में जब हम एंटर हुए तो वहां पर पुल अपन लेफ्ट के लिए मैंने जब आपको बोला वो सिविल कैमरा के पास, तो वहां पर मिडिल में उन्होंने सॉलिड लाइन लगा दी, मिडिल में जो सॉलिड लाइन होती है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे थी, ठीक है। तो हमने इधर ये ड्रॉप था, ठीक है, तो हमने पुल अप लेफ्ट नहीं किया, आपने नहीं किया, पता नहीं आपने जानबूझ के नहीं किया या किया, जो भी हुआ, अच्छा हाँ आपने नहीं।
अब उन्होंने वहां पर क्या किया है, उन्होंने मिडिल रोड के मिडिल में एक सॉलिड व्हाइट लाइन लगा दी। अब सॉलिड व्हाइट लाइन लगी हो ना मिडिल ऑफ द रोड में, तो हम उसके सामने पुल अपन लेफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बंदा ओवरटेक नहीं कर पाएगा। उसमें यह है कि वो हमारे तरफ से ब्रोकन है, दूसरी तरफ से सॉलिड है। अगर ब्रोकन हमारी तरफ हो या सॉलिड हमारी तरफ हो, हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो बंदे उधर से आ या जा रहे हैं उनके लिए भी ओवरटेकिंग का प्रॉब्लम है, तो हम रोड को नैरो नहीं करना चाहते। ठीक हो गया? हम थोड़ा सा आगे जाएंगे स्पीड कैमरे के बाद। जो जिस जगह पे आपने किया ना, वो जगह बहुत अच्छी थी, आपने वो अच्छा किया, पुल अप ऑन द लेफ्ट आपने किया, दैट वाज वेरी गुड। लेकिन उससे पहले वो जो मोबिलिटी स्कूटर था, ये उस बंदा वो आपको इशारे करवा रहा था, तो उसने कब तब मैं गई नहीं, आप उसने इशारे करवाए, क्या वो एक्सपर्ट है, आपको रास्ता दे सकता है? वो तो अपने हिसाब से आपको रास्ता दे रहा है ना। वो वहां देखो ना, एक बंदा एक मोबिलिटी स्कूटर पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो रोड के मिडिल में है, बेसिकली लेफ्ट के साइड पे रोड पे वो चल रहा है अपनी जगह। अब वो आपको इशारा दे रहा है कि मुझे ओवरटेक कर लो, ठीक है, कि मैं फास्ट जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन यार आप अपना तो देखे ना, मुझे आगे से देख के बोल रहे हैं। नहीं, वो कैसे बोल रहे हैं? आगे एक तो ब्रिज है, छोटा सा ब्रिज है ना, याद है? और एक लड़की राइट से, वो लड़की भी रोड की तरफ आ रही थी ना, तो थोड़ी सी वहां पर गड़बड़ हुई ना। आप थोड़ा देखो ना, लड़की की मूवमेंट को भी देखो, ब्रिज को भी देखो, और उस बंदे ने तो इजाजत दे दी ना आपको। अब वो बंदा अगर इजाजत न भी देता प्रिया, अगर वो न भी आपको इशारा करवाता, तो क्या आपने उसके पीछे गाड़ी चलानी थी? नहीं चलानी थी। थोड़ा देर शायद मैं रुकती, फिर देख ओवरटेक करती ना। तो आप उसकी टेंशन मत लें। ये जो लोग होते हैं ये एक्सपर्ट नहीं होते, अनलेस कोई स्पेसिफिकली कोई बंदा डेजिग्नेटेड हो रास्ते देने के लिए, पुलिस की तरफ से या किसी महकमे की तरफ से। यस, फिर तो वो ट्रेंड होता है ना वो बंदा। ये आम लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं रोड के हूँ, पूरी खड़ा होकर लोगों को रास्ते देना शुरू हो जाऊँ, ठीक है, तो हम लोग ट्रेंड नहीं होते, अंडरस्टैंड? वो प्रॉपर ट्रेंड लोग होते हैं, तो उनकी बात पे भी सुननी चाहिए, इनकी नहीं। तो आपने क्या करना था, आपने अपना डिस्टेंस रखना था, लड़की को आगे पीछे होने देना था, और फिर आपने वो ब्रिज का देखना था। इतनी देर में वो ब्रिज के पास चला जाता, आपको थोड़ा बेटर व्यू नजर था। अब देखो यहाँ से ब्रिज आपको बेटर व्यू है ना, और अब यहाँ पर अगर कोई बंदा साइकिल पे जा रहा है, किसी मोबिलिटी स्कूटर पे है, या किसी भी चीज के ऊपर है, और स्लो मूविंग व्हीकल है, कार है, स्लो मूविंग है, क्या आप ओवरटेक नहीं कर सकते? देख के जितना आगे देखोगे इतना। तो वो थोड़ा सा आपने वहां पर गड़बड़ की थी, उसके ऊपर आपने काम करना। आपने उसके जो उसने आपको बोला, आपने समझा कि मुझे अब सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं वो नहीं था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर अगेन आपने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई, फिर आपने वो बेंड घुमाया, सारा करने के बाद न्यूट्रल लीज में जब आप ट्रैफिक लाइटों में गए, याद है, ट्रैफिक लाइटों में आप रुके हो, ठीक, तो आपका जो टायर था, फ्रंट वाले दोनों टायर स्टॉप को क्रॉस करके थे। आपको फील याद आ गया? देखो लाइन के पहले जो ही जैसे जा रहे हो ना, तो फ्रंट से आपकी जो लाइन डिसअपीयर हो जाए ना, तो फिर रुक जाया करें, खास करके स्टॉप के केस में। ट्रैफिक लाइटें रेड थी और स्टॉप लाइन लगी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करो, रुक जाओ। आपके टायर फ्रंट वाले दोनों आगे थे, इस बात के ऊपर आप फेल कर देंगे, केयरफुल अबाउट इट। ऑलराइट, देन उसके बाद ना आपने क्या किया, स्टॉप लाइन के बाद किया लेफ्ट सिग्नल। हाँ, फिर आपने क्या किया, लेक्स का जो राउंड अबाउट है, ठीक है, लेक्स के राउंड अबाउट में आप राइट कर रहे हो, आपने राइट का इंडिकेटर नहीं दिया, पीछे आपकी गाड़ी है, नहीं दिया। आप जब रिकॉर्डिंग होती है आप देख लेना, टिक टिक की आवाज नहीं आएगी आपको, ठीक है। आप एक बार पूरी सुने अभी। उस राउंड अबाउट में परफॉर्मेंस आपकी ठीक थी, आपके पीछे एक गाड़ी थी ना, याद है ना, आपने राइट करना था वहां से, तो आपको इंडिकेटर देना चाहिए था कि मैं राइट कर रही हूँ, पोजीशन भी आपकी ठीक थी, ओके। सो आपने राइट का इंडिकेटर देना था। फिर आपने फटाफट से लेफ्ट होके, वो जो आपको पता कि दूसरे राउंड बोर्ड से मैं लेफ्ट कर रही हूँ। अच्छा, दूसरे राउंड बोर्ड में भी आपका जो इंडिकेटर था ना, वो थोड़ा दिया आपने, वो लेट दिया, वो भी आप चेक कर लेना याद से। वो मेरे इसलिए वो ना टॉम टॉम ने बहुत लेट बोला, तो बताया ना आपको कि टॉम टॉम जब दो राउंड अबाउट इकट्ठे आ जाए ना, समझ नहीं आ रहा था कि वो स्ट्रेट बोलने वाला है या लेफ्ट बोलने वाला है, यही मैंने आपको बताया था उस दिन। तो मैं हाँ प्रिया देखे, मैंने कहा था कि जब दो राउंड अबाउट इकट्ठे आ जाते हैं ना, तो पहले तो बात है ये बोलता ही नहीं है। इस बार इस केस में तो फिर भी कोई बोल गया, ये अक्सर बोलता भी नहीं है, ठीक है। तो आप दूसरे राउंड बोर्ड की प्लानिंग खुद से कर लिया करें, देखें उसके ग्लांस ऑन द स्क्रीन, देखें कि दूसरे राउंड बोर्ड से मैं लेफ्ट जा रही हूँ या स्ट्रेट जा रही हूँ, उसके मुताबिक आप पहले राउंड बोर्ड को जो ही करें, उसके मुताबिक पोजीशन पकड़ लें। अगर आप दूसरे राउंड बोर्ड से लेफ्ट कर रही है, तो लेफ्ट की तरफ जाइए, लेफ्ट का इंडिकेटर लेफ्ट निकल जाइए। जितनी देर में ये बात करती है या करता है, इतनी देर में टू लेट हो जाता है, ओके। तो अच्छा हुआ, चलो एनीवे, ये आपके लिए नया एक्सपीरियंस हो गया। एंड देन मिनी राउंड अबाउट में आपने क्या किया, अननेसेसरी सिग्नल दिया,
ठीक हो गया, उसी रोड के ऊपर मिनी राउंड अबाउट में आप स्ट्रेट जा रहे हो, उसमें कोई मिनी में क्यों देना, कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी, वो ठीक है, वो देखो बिल्कुल सीधा है वो, उसमें घूमना भी नहीं पड़ता, उस मिनी राउंड अबाउट में घूमना भी नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो आपने उसमें अननेसेसरी सिग्नल दिया, फिर आप उसके बाद आगे आपने ये अच्छी ड्राइविंग की, ठीक है। अब अगेन अगर देखा जाए प्रिया, तो ये जो पुल अपन लेफ्ट का थोड़ा सा मामला बना, ओके, ये और वो पॉड का जो उसको क्या बोलते हैं, मोबिलिटी स्कूटर के साथ जो हमारा थोड़ा सा वो हुआ, ये 1-2-4 चीजें ऐसी हैं जो आपने जिनपे थोड़ा ट्रैफिक लाइटों में आप रुके हो, ट्रैफिक लाइटों में आप रुके हो और लाइन को क्रॉस कर रहे हो, ये 2-4 जो ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब इजीली कंट्रोल कर सकती थी, थोड़ा मोर फोकस करके, थोड़ी मोर प्रैक्टिस, इतना बैड ये वाला मॉक टेस्ट इतना बैड नहीं गया। अगर सोचा जाए कोई ऐसी चीजें जो बहुत बुरी चीजें हैं वो नहीं आपने की, ब्लंडर्स नहीं किए, छोटी मिस्टेक हो रही, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है ना आपकी, अब यू आर नॉट फुली ट्रेंड, ठीक है। जब फुल ट्रेंड हो जाएंगी तो फिर ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। हैप्पी अबाउट इट? यस, चलो दैट्स गुड।